The Lord Jesus Christ is holy, He's healthy, He's almighty, He's the King of authority, He's full of power, He's all-seeing God, He's all pure God, He's all compassionate God, He's a gentle God, He's a harmless God. He's all loving, He's all approachable, He's all giving, He's all protecting, He's all firmness, and He's all joyful, He's satisfied. His words are sweet, respectful, comforting words comes out of Him. Praise the Lord, church. Praise Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. First of all, I would like to thank God that He has given me a message to preach today. सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा जो उन्होंने मुझे संदेश को दिया प्रचार के लिए. And I would also like to thank our pastor for training us. और मैं मेरे पासवान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमें सिखाए हैं. Turn your Bibles with me. आप मेरे साथ अपने बाइबल को खोलें इस समय. To the book of Hebrews. और इब्रानियों के पुस्तक में. Hebrews chapter 11. आइए हम इस समय इब्रानियों अध्याय 11 में बाइबल को खोलते हैं. Verse number 1. वचन 1 में हम खोलेंगे. Hebrews chapter 11 verse number 1. इब्रानियों अध्याय 1 वचन 1. इब्रानियों अध्याय 11 वचन 1. And the Bible says, यहाँ पर बाइबल यूं कहती है, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. यूं कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. Let us call to the Lord in prayer. आइए इस समय हम प्रार्थना करें. Let us close our eyes and bow down our heads as we enter into the message. जैसे हम संदेश में हम आगे बढ़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना में. Father God, we thank you for this time, Lord. पिता इस समय हम ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं. We thank you, Lord, for giving us a beautiful day. और हमें नया दिन देने के लिए, सुंदर दिन देने के लिए धन्यवाद देते हैं. Lord, at this moment we'll be listening to your word, God. जैसे इस समय में हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं. Lord, this message is not only for me, ये संदेश बस मेरे लिए ही नहीं है, but it is for your people, God. लेकिन ये आपके लोगों के लिए है. Speak to us, Father. आप हमसे बात करें पिता. We thank you, God, that you are in our presence. धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी हुजूरी में हैं इस समय. We praise you and we love you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं और आपसे हम प्यार करते हैं पिता. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ. आमीन. So we must be all knowing the story about faith. और हम सब शायद विश्वास के कहानी के बारे में हम जानते रहेंगे. The Bible talks about faith. बाइबल यहाँ पर विश्वास के बारे में हमें बताती है. Do we have faith today? क्या आज हमारे पास विश्वास है? Do we have faith in God? क्या हमारे पास परमेश्वर के ऊपर विश्वास है? We may all say that we have faith, right? हम शायद कह सकते हैं हाँ हम सभी के पास विश्वास है. But Jesus tells in the Bible, "O ye of little faith." लेकिन यीशु मसीह बाइबल में हमें बताती है कि हे अल्प विश्वासी. We do lack faith. हमारे पास विश्वास की कमी है. That is why we need to charge ourselves. इसलिए हमें खुद को चार्ज करने की जरूरत है. And how do we charge ourselves? और हमें खुद को कैसे चार्ज करना है? By reading the word of God. वचनों को पढ़ने के द्वारा. By meditating upon it. परमेश्वर के वचन के ऊपर अध्ययन करने के द्वारा. By trusting in God that God will build our faith. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए कि परमेश्वर हमारे विश्वासों का गठन करेंगे. I have noted down some few points on faith. और मैं विश्वास के ऊपर कुछ पॉइंट्स को मैंने लिख के रखा है. If you all have your notebook and pen, that would be really good. अगर आपके पास कलम है, नोटबुक है तो आप उन पर लिख सकते हैं. We need to write it down. और हमें लिखने की आवश्यकता है. God had given the commandment to Moses. परमेश्वर ने मूसा को एक आज्ञा को दिया है. And that commandment was written down.
और वो जो आज्ञा है वो आज्ञाओं को लिखा गया है। So let us write what God has given me. तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि आइए हम इस समय लिखें। So here's the story about faith. तो यहाँ पर एक विश्वास का कहानी है। There was a village, एक गांव था and in that village there was no rain. और उस गांव में कोई बारिश नहीं थी। And what happened? उसके बाद क्या हुआ? That the villagers decided they will get together and pray for the rain. और गांव के लोगों ने ये निर्णय लिया कि आइए हम इकट्ठे होकर एक होकर हम प्रार्थना करेंगे। And they got together one day और हम लोग एक साथ हुए एक दिन and they prayed for the rain. और बारिश आने के लिए हम लोग प्रार्थना करने लगे। But there was just one boy लेकिन एक लड़का था वहां पर who came with the umbrella. जो अपने छाता को लेकर आए। Just one boy. केवल एक ही लड़का। He had faith उनके पास विश्वास था that if they would pray, कि अगर हम लोग प्रार्थना करें it would definitely rain. कि वहां पर जरूर से बारिश आएगी। So are we having faith like that little boy? क्या उस छोटे से बालक के समान हमारे पास भी वैसा विश्वास है? Let us see the first point for today. आइए हम आज के लिए पहला हम पॉइंट को देखेंगे। However big your problems are, चाहे जितना भी बड़ा आपका समस्या हो, God is greater than all those problems. परमेश्वर उन सारे समस्याओं से भी ज्यादा बड़ा है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं इसके Do ऊपर? you believe that God is greater than all the problems? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ा है? Do you understand that God can take control of every situation in your life? क्या आप समझ पाते हैं कि आपके जीवन के हर एक समस्याओं को वो अपने वश में कर सकता है? So I'm going to tell you the title of my message now. तो मैं मेरे संदेश की जो टाइटल है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। Testimonies of faith. और विश्वास की गवाहियाँ। Testimonies of faith from the Bible. बाइबल से विश्वास की गवाही को हम देख रहे हैं। If you turn with me to 1 Samuel chapter 17, अगर आप पहला शमूएल अध्याय 17 में खोलेंगे, verse 4 to 58, y'all can definitely read this once you'll go back home. जैसे आप घर में वापस जाएंगे 4 से लेकर आप बाकी जितने सारे वचने हैं उसको आप पढ़ सकते हैं बाद में। So here we see the story of David and Goliath. तो यहाँ पर हम एक कहानी को देख सकते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में। So what is the faith do we get to see from the story? और इस कहानी से हम किस प्रकार का विश्वास को हम देख पाते हैं? So one side we have Goliath एक तरफ हमारे पास गोलियत है and the other side we have David. और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है? दाऊद है। Now Goliath is considered as a champion, और गोलियत जो है उसको चैंपियन माना जाता है a man of war. और जो लड़ाई का जो व्यक्ति है। Whereas on the other side we have David who is just a mere boy. लेकिन दूसरे साइड में एक व्यक्ति है जिनका नाम दाऊद, इसको बस एक छोटा सा बालक माना जाता है। He's the keeper of sheep. और वो भेड़ों का रखवाला है। He's the son of Jesse. और वो जेसी का पुत्र है। And here there is a war. और यहाँ पर एक लड़ाई होती है। War between the Philistines and the army of Israel. और यहाँ पर फिलिस्तीन और इज़राइल की जो सेनाएं हैं उनके ऊपर उनके बीच में लड़ाई होती है। So Goliath over here is thinking that he is mighty गोलियत यहाँ पर क्या सोच रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ and he thinks that he can overcome. और उनको लगता है कि वो अतिक्रम कर सकते हैं। But on the other hand we see David, लेकिन दूसरे साइड में हम किसको देखते हैं? दाऊद को हम देख सकते हैं। and who was with David? दाऊद के संग कौन था? God was with David. परमेश्वर दाऊद के संग था। God of Israel was with David. इज़राइल का परमेश्वर दाऊद के संग था। So David had that faith that God will take care of his problem. दाऊद के पास वो विश्वास था कि परमेश्वर सारे समस्याओं का समाधान करेंगे। What was the problem? समस्या क्या था तभी? Goliath was the problem. गोलियत जो है वो समस्या था। So here's the thing. तो यहाँ पर एक चीज है, So however big the problem is, चाहे समस्या जितना भी बड़ा हो, if you have God standing with you, अगर परमेश्वर आपके पक्ष में खड़े हैं then you don't have to fear. तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। And that is what David did. और वही दाऊद ने भी किया And he knocked down Goliath. और दाऊद को उसने हरा दिए। So do we have faith like David?
क्या हमारे पास भी दाऊद के समान विश्वास है? Now, the story of David is a vast story. Maybe I'll go into it some other day. शायद कुछ दिन में शायद मैं उन कहानियों में जाऊंगा, But this is the faith about David, that David conquered Goliath. तो यहाँ पर एक दाऊद का विश्वास है जो दाऊद ने गोलायत के ऊपर पराजित किए। My second point for today, आज के लिए मेरा दूसरा जो पॉइंट है, God ordained faith must be tested. परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए जाना, उसका परखा जाना उचित है। God ordained faith must be tested. जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा जाना, उसको परखा जाना उचित है। If you turn your Bibles to Genesis chapter 22 onwards, अगर हम अपने बाइबल को खोलेंगे उत्पत्ति 22 में, here we see the story of Abraham and Isaac. यहाँ पर हम अब्राहम और इसहाक के बारे में हम कहानी को देख सकते हैं। So Abraham was called the father of many nations. और अब्राहम को जो है बहुत से देशों का पिता कहा जाता है। Now God was with Abraham. परमेश्वर अब्राहम के संग था। Now if you notice in the story, we see that God had tested Abraham. अगर हम इस कहानी में देखेंगे, परमेश्वर ने जो है अब्राहम के विश्वास को परखा। He had tested Abraham with his only son. परमेश्वर ने उनके खुद के बेटे जो इसहाक है अब्राहम के पुत्र, उनको ही जाकर उन्हें परखा है। So we know this story as well. और हम इस कहानी को वो जानते हैं। We know that God had tested Abraham with his only son. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के खुद के पुत्र जो इसहाक है वही को लेकर परमेश्वर ने उनके विश्वास को परखा। Now Abraham and Sarah had got their child in a very old age. अब्राहम और सारा जो है उन्होंने बहुत ज्यादा उम्र में जो है उन लोगों ने संतान को पाए हैं। So can God give us a child even at our old age? क्या परमेश्वर हमारे बुढ़े उम्र में भी परमेश्वर ऐसे संतान को दे सकते हैं? Yes, it is possible. हाँ, ये मुमकिन है। With man it's impossible, मनुष्य के द्वारा ये असंभव है, but with God all things are possible. लेकिन परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। So here we see the story of Abraham and his son Isaac. तो यहाँ पर हम अब्राहम और उनके जो पुत्र है इसहाक की हम कहानी को देख सकते हैं। Now Abraham knew three things that we see about faith. अब्राहम यहाँ पर तीन चीजों को जानते थे जो हम विश्वास को लेकर यहाँ पर देख रहे हैं। Now Abraham knew that God would not allow anything to happen to his son. अब्राहम जानता था कि परमेश्वर जो है उनके बेटा जो है इसहाक को कुछ हानि नहीं होने देंगे। And for a sacrifice, God would provide a lamb. और बलिदान के स्वरूप परमेश्वर एक मेमना को जरूर से उपलब्ध करेंगे। So where Isaac was to be sacrificed, it is the same place where Jesus was being sacrificed. जहां पर इसहाक को बलिदान करना था जगह में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी भी जो है अपने आप को कुर्बान किए हैं। So even in his old age, God gave him a son. और अब्राहम के ज्यादा उम्र के समय में परमेश्वर ने उन्हें एक पुत्र को दिया। So Abraham was tested. अब्राहम को परखा गया। Now there is a story about a man by name Javier. और एक कहानी है जो एक व्यक्ति हावियर के बारे में। Javier worked in a mobile shop. हावियर जो है एक मोबाइल के दुकान में काम किए। He was working in the storehouse. और वो स्टोर हाउस के यहाँ पे काम कर रहे थे। So one day his boss gives him a call and tells him to come to the cabin. और एक दिन उनका जो मालिक है उन्हें बुला करके उनके केबिन में उन्हें बुलाया। And the boss says, I have a job for you. और मालिक ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। And here we see Javier is a Christian. और यहाँ पर हम हावियर को क्या देखते हैं, वो एक मसीह है। So Javier was being told that he has a job. और हावियर को कहा गया कि उनके पास एक काम है। And that job would make him a manager. और वो काम के द्वारा उन्हें जो मैनेजर का जगह मिल सकता है। So the job was तो काम ये था that instead of showing 15 iPhone boxes, और 50 आईफोन बॉक्स को दिखाने के बजाय 15 15 बॉक्सेस को दिखाने के बजाय
he had to show only 13 iPhone boxes. उन्हें केवल 13 आईफोन जो बॉक्स है उसको दिखाना था। Now he was actually put to a test. उन्हें जो है परखा गया है, उस समय परखा जाने के लिए किया गया था। So the boss told him that if you do this, मालिक ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे then you'll be given the job of a manager. तो तुम्हें जो है मैनेजर का काम दिया जाएगा। So what we would do in this case? तो इस परिस्थिति में हम क्या करते? So what Javier did was, he was given a day to think and come next day and give his answer. और हावियर को जो है दिन को दिया गया और अगले दिन को आकर ताकि वो उसका जवाब को दे सके। So Javier goes home. तो हावियर जो है घर को जाता है He discusses with his wife. और अपने पत्नी से वो बातचीत करते हैं। So he tells that, the boss has told me to show at least 13 iPhone boxes instead of 15 iPhone boxes. और अपने पत्नी से कहने लगा कि हाँ जो मेरा मालिक है 15 बॉक्स के बजाय 13 बताने के लिए कहा है। And Javier was actually a poor guy. और हावियर जो है वो एक गरीब व्यक्ति था। So his wife started telling him और उनकी जो पत्नी है उन्हें कहने लगी that it is fine, you can just do it, otherwise you lose your job. तुम ऐसा ही करो नहीं तो तुम अपने काम को भी खो दोगे। So Javier thinks about this. तो हावियर जो है इसके बारे में सोचने लगा And the next day he goes to his boss. और अगले दिन वो अपने मालिक के पास जाता है। And now his boss is waiting for his answer. और अभी जो मालिक है उनके सवालों के जवाब के लिए वो अपेक्षा कर रहे हैं। So his boss asks him, उनका जो मालिक है उन्हें पूछने लगता है, so Javier, what have you decided? तो हावियर तूने क्या निर्णय लिया? So Javier says, हावियर यूं कहता है, sir, I thank you for the opportunity, सर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए, but I refuse to do what you want me to do. लेकिन जो आप मुझसे करवाना चाहते मैं उनका इनकार करना चाहूंगा। So the boss looked at him तो बॉस ने उनकी ओर देखा, मालिक ने उनकी ओर देखा and told him, और उनसे कहा, do you understand what are you saying? क्या आप समझ पा रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो इस समय? Do you know that you can lose your job by not listening to me? क्या तुम जानते हो मुझे नहीं सुनने के द्वारा तुम अपने काम को खो भी सकते हो? Javier says, I understand. हावियर कहता है हाँ मैं समझता हूँ, I know I can lose my job, हाँ मुझे मालूम है मैं अपना काम को खो सकता हूँ, but I'm a Christian. लेकिन मैं एक मसीह हूँ, I will not lie. मैं झूठ नहीं बोलूँगा। The truth is I have to show 15 iPhone boxes. I will show only 15 iPhone boxes. ये सच बात यह है कि 15 बॉक्स दिखाने की आवश्यकता है तो मैं 15 ही बॉक्स को मैं दिखाना चाहूँगा। I will not show the 13 iPhone boxes. मैं 13 आईफोन बॉक्स को नहीं दिखाना चाहूँगा। The boss kept quiet for a moment. और जो मालिक है कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए वो चुपचाप रहे। And then after few minutes, और कुछ मिनटों के बाद the boss removes his hand forward and he says, congratulations, Javier. और जो मालिक है अपने हाथ को बढ़ाकर मिलाने के लिए यूं कहता है कि तुम्हें बधाई हो हावियर। He was put to a test. उन्हें एक परीक्षा में डाला गया था They wanted an honest employee. क्योंकि उन लोग एक ईमानदार व्यक्ति को चाहते थे। They didn't wanted someone who would cheat. उन लोग ऐसा व्यक्ति को नहीं चाहते थे कि जो उन लोग को भरमा सके। So Javier was put to a test. तो हावियर को जो है परखा गया था तभी। So what do we learn over here? तो यहाँ से हम क्या सीखते हैं? We all are going to be put to a test. हम सभी लोग जो है एक परीक्षा में हमें डाला जाएगा। Every day in our lives will be put to a test. हर एक दिन हमें परीक्षा में डाला जाता है। You might be put to a test to, by your business, शायद अपने बिजनेस के द्वारा आपको परखा जाता है, through your finance, आपके फाइनेंस के द्वारा, maybe even through your family. शायद आपके परिवार के द्वारा भी। Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, Trust in Him. उनके ऊपर भरोसा रखें। God ordained faith will be tested. परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना उसका परखा जाना उचित है। My third point is, मेरा तीसरा पॉइंट ये है, when God warns, जब परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं you better listen. बेहतर यही कि आप सुने। When God warns, जब परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं you better listen. बेहतर ये होगा कि आप सुने। We see in Genesis chapter 6 and 7,
हम उत्पत्ति 6 और 7 में जब हम देखते हैं, This is the story about Noah. और ये नूह के बारे में कहानी है। We all know the story about Noah, right? और हम सब लोग नूह के बारे में ये कहानी को जानते हैं। Now let's see the faith about Noah. अभी हम नूह के विश्वास के बारे में हम देखेंगे। You see, God had warned Noah that he would be sending a rain. परमेश्वर ने नूह को पहले से ही चेतावनी दिया था कि परमेश्वर जो है बारिश ले आने वाला है, And that rain would be such that it would destroy all mankind. और ऐसा बारिश आने वाली है कि जो सारे मनुष्य अधिकार नष्ट कर देंगे। So God will warn you for certain things, और कुछ चीजों के लिए परमेश्वर आपको चेतावनी देंगे पहले, and you better listen. और आपको बेहतर यह होगा कि आप सुने। We know the 3 W's, right? और हम 3 W के बारे में हम जानते भी हैं। Warning, सबसे पहले चेतावनी, second is weeping, दूसरा जो है आपको जीवन में दर्द भरी जीवन होंगे, and third is wooden box. और तीसरा जो है एक वुडन बॉक्स, That is the final. और वही अंतिम है। So here Noah was being warned by God. तो यहाँ पर नूह को जो है परमेश्वर ने चेतावनी को दिए। And when Noah was warned, he was told to build an ark. जब नूह को सावधान किया गया तभी नूह को कहा गया एक जहाज बनाने के लिए। And this ark was so big that it could take a lot of people and a lot of animals. जहाज इतना बड़ा था कि बहुत से लोग वहां पे समा सकते थे और बहुत से जानवर भी। Now while Noah was preparing for the ark, he was also preaching. जब नूह जहाज को बना रहे थे तब वो प्रचार भी कर रहा था। So it took more than 100 years for him to preach. और 100 साल से भी अधिक ज्यादा समय लग गया उन्हें प्रचार के लिए, Because during that time he's also building the ark. क्योंकि वो समय के दौरान वो जहाज को भी बना रहे थे। So you might be also getting discouraged many a times शायद बहुत से समय आप भी शायद निराश हो रहे होंगे, because y'all are also preaching to your family. आप भी शायद अपने परिवार को जाकर प्रचार कर रहे हैं। Noah preached for more than 100 years, नूह ने 100 साल से भी अधिक ज्यादा समय में प्रचार किए, but how many got saved? लेकिन कितने लोगों ने उद्धार पाया? Just 8 people, केवल 8 ही लोग, that too his family. और वही उनके परिवार। Can you believe that? क्या आप विश्वास भी कर सकते हैं इसके ऊपर? 100 plus years he's preaching and only 8 people getting saved? 100 साल से भी ज्यादा ऊपर उन्होंने प्रचार किया लेकिन केवल 8 ही लोग उद्धार को पाए। We should not give up on God. हमें परमेश्वर के ऊपर त्याग नहीं देना चाहिए। If Noah wanted, he could have given up, अगर नूह चाहता था वो भी छोड़ सकते थे विश्वास को, because he feared God. लेकिन उन्हें परमेश्वर का भय माना। So only 8 people in his family got saved. केवल उनके परिवार में 8 ही लोग उद्धार को पाए। I'll share a testimony about my life. मैंने अपने जीवन की कहानी के बारे में गवाही को दी। I got saved in the year 2008. 2008 को मैंने उद्धार पाया। Now after I got saved, my whole intention was to pray for my family. उद्धार पाने के बाद मेरी जो उद्देश्य थी वो मेरे परिवार के लिए प्रार्थना और उद्धार पाना। I wanted my parents to get saved. मैं चाहता था कि मेरे माँ बाप जो है वो उद्धार पाए, I wanted to have a godly wife. और मैं ईश्वरीय एक पत्नी को ताकि मैं पा सकूं। So I kept praying. और मैं लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। So imagine from 2008 till the last year 2022, I've been praying. तो सोचे 2008 से लेकर पिछले साल 2022 तक मैंने लगातार प्रार्थना किया, And last year my family got saved. और पिछले साल मेरे परिवार के लोग उद्धार को पाए, My parents got saved. मेरे माँ बाप भी उद्धार पाए। So now we are a complete family. तो अभी हम पूरा एक परिवार हैं। My prayer was मेरी जो प्रार्थना ये थी that before my child comes into this world, मेरा जो संतान होंगे वो संसार में आने से पहले I want my family to be saved. मैं चाहूंगा कि मेरे परिवार उद्धार पाए। Because if they are not saved, then there will be a division in the house. अगर उन लोग उद्धार नहीं पाएंगे तो मेरे परिवार में वाद विवाद बाधाएं आएंगे बहुत सारे। So I kept on praying. तो मैं लगातार प्रार्थना करना शुरू किया। See, God does answer prayers.
परमेश्वर हमारे दुआओं को कबूल करते हैं। We need to keep on praying. हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Turn with me to Mark chapter 11 verse 24. मार्कुस अध्याय 11 वचन 24 में हम इस समय बाइबल को खोलते हैं। The Bible says, बाइबल यूं कहती है therefore I say unto you, कि मैं तुमसे यूं कहता हूं what things soever ye desire, कि तुम जो कुछ भी चाहो when ye pray, जब तुम प्रार्थना करो, believe that ye receive them, विश्वास करो कि तुमने उन्हें ग्रहण कर चुके हो and ye shall have them. और तुम उन्हें प्राप्त भी करोगे। We need to pray. हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Last Sunday we heard that there are times when we pray, God doesn't answer our prayers. पिछले हफ्ते को हमने देखे ऐसे समय है जहां पर हम प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब हमें नहीं आता। Why? Because we have sin in our lives. क्यों? क्योंकि हम हमारे जीवन में पाप करते हैं। Sometimes our prayers are not answered कभी कभार हमारी प्रार्थनाएं जवाब हमें नहीं मिलती है because we do not confess our sins to क्योंकि God. हम हमारे पापों का अंगीकार हम नहीं करते हैं। We keep it within ourselves. हम अंदर ही अंदर उसको दबा कर रखते हैं। But remember that God knows our thoughts afar off. लेकिन आपको ये जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे सोच को अपरंपार वो जानते हैं। He knows what is there in our heart. वो जानते हैं हमारे दिल में क्या है। Psalms chapter 139 verse 4. भजन संगीत 139 वचन 4 में हम खोलेंगे। For there is not a word in my tongue, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं but lo, O Lord, thou knowest it altogether. जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। He knows everything. वो सब कुछ जानता है। The Bible says He has formed us in our mother's womb. परमेश्वर यूं लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी माता के गर्भ में हमें पाया है। So we need to fear God. तो हमें परमेश्वर का भय मानने की आवश्यकता है। So Noah feared God. तो नोआ ने परमेश्वर का भय माना, He obeyed God. परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया। 8 people got saved. 8 लोगों का उद्धार हुआ। Have faith in God. परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। Believe that God will answer your prayers. विश्वास करके परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। All you need to do is have patience. आपको केवल यही होने की आवश्यकता है कि आप धैर्य रखें। At the right time, everything will happen. सही समय में सब कुछ होंगे। Nothing happens according to our time. हमारे समय के अनुसार कुछ नहीं होता, Everything happens according to God's time. परमेश्वर के समय के अनुसार सब कुछ होता है। My fourth point for today is आज के लिए मेरा चौथा पॉइंट ये है, hearing the word of God increases our faith. परमेश्वर का वचन सुनना हमारा विश्वास को बढ़ा देते हैं। The Bible says in Romans chapter 10 verse 17, रोमियो के अध्याय 10 वचन 17 में बाइबल यूं कहती है, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. विश्वास सुनने और सुनने से विश्वास हमारा बढ़ता है परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा। Turn to Mark chapter 5 मरकुस अध्याय 5 में बाइबल को खोलें इस समय verse 25 to 34. 25 से हम देखेंगे। So here we see the story of a woman. यहाँ पर हम एक स्त्री के बारे में एक कहानी को देखते हैं। Now this woman had an issue of blood for 12 years. और एक स्त्री थी जो खून को लेकर उनके 12 साल से खून बहने का, लहू बहने का बीमार था। She went to every possible doctor that she knew. और जितना भी डॉक्टर को पास जाने के लिए वो संभव थी उन्होंने किया। She spent all her money. उन्होंने अपने सारे धनों का इस्तेमाल किया। She thought that she would be healed. उन्हें लगने लगा कि हाँ वो चंगाई पा लेगी, But the Bible says she grew worse. लेकिन हम बाइबल में लिखा है कि वो और भी ज्यादा बदतर हो गई। So let us see the faith of this woman now. इस स्त्री के हम विश्वास को अभी हम देखने वाले हैं। So Jesus was passing by that time और यीशु मसीह उस रास्ते से मार्ग से गुजर रहे थे and she
heard that Jesus is passing by. और वो सुने कि यीशु मसीह जो है उस रास्ते से गुजर रहे हैं। So when she heard, she started to think जब उसने सुना वो सोचने लगी that even if I touch the hem of his garment, अगर मैं यीशु मसीह के आंचल को भी छू लूं I will be healed. मैं चंगाई पा लूंगी। You see the faith of this lady? आप देखते हैं इस स्त्री का जो विश्वास है कैसा है। She had faith that even if I touch his garment, I will be healed. ऐसा विश्वास कि अगर मैं यीशु मसीह के आंचल को भी छू लूं मैं चंगाई पा लूंगी। So in your sickness, seek God. तो आपके रोग बीमार के समय आप परमेश्वर को खोजें। I'm not saying don't go to the doctor, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, because it's good to go to the doctor. लेकिन ये अच्छी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, But don't put your faith on the doctor. लेकिन आप डॉक्टर के ऊपर अपना विश्वास को ना रखें। Put your faith on God. आपका विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर रखें, For He is the only one who can heal you. क्योंकि वही एकमात्र ऐसा खुदा है जो आपको चंगाई दे सकता है। So this lady had faith तो इस स्त्री के पास ऐसा विश्वास है that even if she touches the garment of God, अगर यीशु मसीह की वस्त्र को भी वो छू लें that she would be healed. कि वो चंगाई पा लेगी। And that's what happened. और वही हुआ, She touched उन्होंने छुआ, स्पर्श किए and immediately और she was उसी healed. वक्त तुरंत उन्हें चंगाई मिल गई, Immediately. तुरंत। So it's possible. तो ये संभव है। So have faith like that lady. तो उस स्त्री के समान आप भी अपना विश्वास को रखें। My fifth point is मेरा पांचवा पॉइंट ये है, Jesus builds our faith. यीशु मसीह हमारे विश्वासों को बांधता है। Matthew chapter 14, मत्ती अध्याय 14 में verse 28, वचन 28, we know about Peter walking on the water. हम यहाँ पर पतरस के बारे में देखते हैं जो पानी के ऊपर चला। You see, Peter was actually walking on the water. और हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो है वाकई में पानी के ऊपर चल रहा था। Why? Because Jesus was standing in front of him. क्यों? इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह उसके सम्मुख खड़े हुए थे। Peter wanted to walk on the water, पतरस पानी के ऊपर चलना चाहता था, so he asked the Lord, और उन्होंने प्रभु से पूछा, "Can I also walk on the water with you?" क्या मैं भी आपके साथ पानी के ऊपर चल सकता हूँ? And Jesus said, "Come." और यीशु ने कहा आओ, And he started walking. और वो चलने के लिए शुरू किया। So while walking, his eyes was focused on Jesus. जब वो पानी के ऊपर चल रहे थे तो उनकी जो नजरें थे वो यीशु की ओर थी। Are we focused on Jesus? क्या हम हमारी नजरों को यीशु की ओर रखते हैं? You know, we have these issues in life हमारे पास जीवन में ऐसा समस्या है where we start looking at all the problems around us. जहाँ पर हम हमारे सारे समस्याओं को हम देखने के लिए शुरू कर देते हैं And we forget that Jesus is with us. और हम ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह हमारे संग हैं। He's right there. वो वहां पर ही है, मौजूद है, He's looking at each and every one of you. और वो आप प्रत्येक जनों को देख रहे हैं And He's saying, और वो कहता है have faith on me. मेरे ऊपर विश्वास रखो, Have faith on me. मेरे ऊपर विश्वास रखो। So what happened to Peter? तो पतरस को क्या हुआ समय? For a moment he started looking at the storm. और कुछ समय के बाद पश्चात उन्होंने इस इधर उधर तूफान की ओर देखने लगे And he started to sink. और वो डूबने लगा। Same thing happens with us. और वही हमारे जीवन में होता है। When we have problems in life, जब हमारे जीवन में समस्याएं आती है we also tend to sink. और हम भी डूबना शुरू कर देते हैं। But what encourages us? लेकिन हमें क्या उत्साह लाती है? What lifts us up? हमें क्या ऐसी चीज है जो हमें उठा देते हैं? It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन। Amen. आमीन। It is Jesus who lifts us up. और ये वही यीशु है जो हमें उठाते हैं। So Jesus caught hold of Peter's hand तो यीशु ने पतरस की ओर हाथ को बढ़ाकर उनके हाथ को पकड़े and he brought him out. और उन्हें पानी से ऊपर ले आए And he said, "O ye of little faith, और कहता है, हे अल्पविश्वासी, why do you doubt?" तुमने क्यों संदेह किया? Do we have faith today?
क्या हमारे पास आज विश्वास है Do we still doubt? या फिर आप फिर भी संदेह करते हैं? Do you believe that God will bring you out of every problems in life? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको सारे समस्याओं से बाहर ले आ सकता है? What are your problems? आपके समस्याएं क्या है? Financial problems? क्या आप आर्थिक समस्याएं हैं Relationship problems? या फिर रिश्तों को लेकर समस्या है? Job problems? काम को लेकर समस्या, Family problems? परिवार को लेकर समस्या? Surrender it to God. प्रभु में आप समर्पित करते हैं। The Bible says in Matthew chapter 6 verse 33, मैथ्यू अध्याय 3 वचन 33 में बाइबल यूं कहती है the Bible says, seek ye first the kingdom of God कि तुम सबसे पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो and his righteousness, और उनकी धार्मिकता, and all things और ये सारे चीजें shall be added unto thee. तुम्हें दिया जाएगा। Seek God first. सबसे पहले आप परमेश्वर को खोजें Let him be as your first priority. ताकि वो तुम्हारा पहला लक्ष्य हो सके। Jesus builds our faith. यीशु मसीह हमारे विश्वासों को बांधता है। Turn with me to Hebrews chapter 12 verse 2. इस समय हम इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2 में हम बाइबल को खोलते हैं। The Bible says, बाइबल यूं कहती है, looking unto Jesus, और यीशु की ओर ताकते रहना, the author and finisher of our जो faith, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, who for the joy that was set before him जिसने उस आनंद के लिए endured the cross, जो उनके आगे धरा था, despising the shame, लज्जा की और कुछ चिंता ना करके and is set down at the right hand of the throne of God. क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। Jesus is the author and finisher of our faith. यीशु मसीह हमारा विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। My final point for today is, आज के लिए मेरा आखिरी पॉइंट है, it is never too late to repent and accept the free gift of salvation. ये कभी भी हमारे लिए लेट नहीं होंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह की जो दिए हुए तोहफा है उसको हम ग्रहण करने के लिए। It is never too late. ये कभी भी लेट नहीं हमारे लिए। Do you remember the thief on the cross? क्या आप उस चोर को जानते हैं, डाकू को, जो क्रूस पर था, लटका गया था? There were two thieves. वहां पर दो चोर थे ऐसे। One thief एक जो चोर है उनमें से was looking at Jesus यीशु की ओर देखकर and he was mocking him. और यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। Whereas the other thief, और दूसरा जो चोर था, he was telling the thief who was mocking Jesus, और जो यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, उस चोर को दूसरा चोर ने कहने लगा, don't you fear God? क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते? Don't you fear God? क्या तुम परमेश्वर का भय नहीं मानते? This man who is crucified had no sin in him. जो व्यक्ति को यहाँ पर क्रूस पे लटका गया उनमें कोई भी पाप नहीं है। But we, because of our sins, we are crucified. लेकिन हम हमारे पापों के खातिर यहाँ पर हमें लटकाया गया है क्रूस पर। Luke chapter 23 verse 39 to 43. लूक 23 में हम अगर बाइबल को खोलते हैं, You all can read this when you all go home. जब आप घर में जाएंगे आप पढ़ सकते हैं उसको। Don't wait till the end. अंतिम तक आप अपेक्षा ना करें। Now is the time to trust in Jesus. अभी ये अच्छा समय है यीशु के ऊपर विश्वास करना। Now is the time to surrender your life to him. अभी ये सही समय है अपने आप को परमेश्वर में समर्पित करना। So the thief, तो वो जो डाकू था, he was telling the thief who was mocking Jesus, और जो दूसरा चोर यीशु को मजाक उड़ाते थे, उस चोर को कहने लगा that we are crucified because of our sins. हम हमारे गुनाहों की वजह से हमें क्रूस पे लटका गया है। He who knew no sin became sin for us. जो कुछ पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप बना। He knew no sin. यीशु कोई पाप नहीं जाना। That thief knew that he was a sinner. लेकिन वो चोर, उन्हें पता था कि वो पापी है।
But the other thief was just mocking लेकिन Jesus. दूसरा जो चोर है वो यीशु का मजाक उड़ा रहे थे. So the thief who believed that he is a sinner, और जो चोर जो विश्वास करने लगे कि हाँ मैं पापी हूँ, he looked unto Jesus वो यीशु की ओर देखा and he said, Lord, remember me. और यीशु से कहा, प्रभु आप मुझे याद करें. How is your faith today? आपका विश्वास आज कैसा है? Will you put your trust in Jesus today? क्या आज आप अपने विश्वास को यीशु में रखेंगे? Do you believe that God can build our faith? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बांध सकता है? We need to repent. हमें पश्चाताप करना है. We need to ask forgiveness. हमें क्षमा की आवश्यकता है. Because the Bible says, for all have sinned. क्योंकि बाइबल कहते हैं कि सभी ने पाप किया. For all have sinned and fallen short of the glory of God. सभी ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. There is none righteous. कोई भी धार्मिक नहीं है. There is just one person who is righteous. एक ही व्यक्ति है जो धर्मी है. There is only one God, एक ही परमेश्वर and that's the Lord Jesus Christ. और वो प्रभु यीशु मसीह. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. यीशु ने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ. No man cometh to the Father but by me. बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता. I would encourage you to build your faith on Jesus. मैं आपको उत्साह करूँगा कि आप अपने विश्वास को यीशु में बांधें. If there is someone over here who has not yet accepted Christ, अगर आप में से कोई यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी तक यीशु को स्वीकारा नहीं है, then I would encourage you to accept him right तो now. मैं अभी आपको उत्साह करूँगा कि आप अभी ही यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारें. Right now is the time. अभी ये समय है. The thief on the cross looked at Jesus and said, Lord, remember me. और वो चोर ने यीशु की ओर देखकर कहा, प्रभु आप मुझे याद करें. Just those words, Lord, remember me. बस वही कुछ शब्द, प्रभु आप मुझे याद करें. And what did Jesus say unto him? और यीशु ने उनसे क्या कहा? Today you shall be with me in paradise. आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होगे. Today, आज. if right now you confess and get right with God, अगर अभी आप पश्चाताप करके यीशु के साथ सही हो जाएं, your names will be written in the Lamb's book of life. आपके नाम जीवन के मेमने के पुस्तक में लिखा जाएगा. Have faith in God. प्रभु के ऊपर विश्वास करें. Believe in him, उनके ऊपर विश्वास करें, because all things are possible with him. क्योंकि सब चीजें उनके द्वारा संभव हैं. Let us close in prayer. हाँ, ये समय हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें. Let us close our eyes and bow down our heads. आइए हम इस समय आंखें बंद करके सिरों को झुकाएंगे प्रार्थना में. Father God, we thank you for this message you have given us, Lord. पिता परमेश्वर, इस संदेश जो आपने हमें दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं. Lord, help us to build our faith, Lord. पिता आप हमें मदद करें ताकि हम हमारे विश्वास को बांध सकें. We have seen some of the testimonies from the Bible, Lord. हमने कुछ ऐसे गवाहों को हमने बाइबल से देखे हैं पिता, Let us trust in you, God. ताकि हम आपके ऊपर विश्वास करें, Let us believe in you, Lord. ताकि हम आपके ऊपर अपनी विश्वास को रखें. For we believe that you are the true God, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप सच्चा जीवित परमेश्वर हैं and there is no other God besides you. और आपके सम्मुख कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं. We thank you for giving us this message, Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस संदेश को देने के लिए. Lord, help us to apply this message in our lives. पिता आप हमें मदद करता कि हमें सच्चाई को हमारे जीवन में लागू कर सके. We give you thanks and praise. हम आपको धन्यवाद और स्तुति देते हैं. In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. Amen. आमीन. आमीन.